Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Up till now you have studied the two chapter of the organic chemistry. First was about the basic concept of the organic chemistry and the other one was the aliphatic hydrocarbons. Now moving towards the next chapter, which is about the aromatic hydrocarbons. What is meant by hydrocarbons? Hydrocarbons are those compounds which contain carbon and hydrogen. They may contain carbon and hydrogen. So the compounds containing carbon and hydrogen are known as hydrocarbons. They are of the two types. They may be acyclic hydrocarbons and the cyclic hydrocarbons. Acyclic hydrocarbon are also known as ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स. इनको हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कह सकते हैं. इसमें आपने तीन कैटेगरी पढ़ी है, अल्केन्स, alkenes and alkynes. Alkanes are the compounds which contain only carbon to carbon single bond, and alkenes are the compounds which contain carbon to carbon double bonds, and alkynes are those compounds in which carbon to carbon triple bond may be present. Now moving towards the cyclic type hydrocarbons, they are also known as closed chain hydrocarbons. They are of the two types. They are may be known as alicyclic or aromatic. Alicyclic क्या होते हैं? They are simply they can be formed by simply cyclizing the alkanes. alkanes जो होते हैं उनको आप cyclize कर देंगे तो उनको हम alicyclic hydrocarbons कह सकते हैं. उनके for example, this is a cyclobutane. This is the cyclobutane which can be formed by simply cyclizing the n-butane. n-ब्यूटेन को आप साइक्लाइज कर दो तो ये आपके पास साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा. दिस इज द साइक्लोपेंटेन एंड दिस इज द साइक्लोहेक्सेन. द अदर कैटेगरी इज नोन एज द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. एरोमेटिक क्या होता है इसको हम डिस्कस करते हैं. एरोमेटिक वाज इंट्रोड्यूस बाय द केक्यूल. फर्स्ट टाइम इसको केक्यूल ने इंट्रोड्यूस कराया था और इसके अंदर बेंजीन और उससे मिलते जुलते कंपाउंड को हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. बेंजीन क्या होता है? इट हैज़ द 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसमें 6 कार्बन होते हैं और 6 ही हाइड्रोजन होते हैं. C6 and H6 type compound are known as the benzene compounds. और why they are called aromatic? Earliest it was known कि they have special smell. They have organic smell. उनके अंदर ख़ास किस्म का अरोमा होता था और अरोमा किसको कहते हैं? फ्रेगनेंट को कहते हैं. So they all mostly these compounds produce the smell. So they are known as aromatic compounds. There are some characteristics of the aromatic compound. उनकी कुछ खुसूसियात है. मोस्टली दे आर साइक्लिक कंपाउंड. वो कैसे होते हैं? साइकिल ओपन चेन नहीं होते, जैसे कि मैंने पहले बताया. दीज आर नॉट ओपन चेन, दे आर क्लोज चेन, मीन दे आर साइक्लिक कंपाउंड्स. उनके अंदर डबल बॉन्डेड होता है. ये फॉर्मूला आपको क्या शो कर रहा है? C6H6. इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर बराबर है. इट्स मीन कि it contain a high degree of unsaturation. These compounds contain a high degree of unsaturation. और unsaturation में हमने दो तरह के compounds पढ़े थे, alkenes और alkynes. इनके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हैं और आपने इनके रिएक्शंस में पढ़ा होगा कि दे आर अंडरगो एडिशन रिएक्शन. कभी आपने वाटर की एडिशन की, कभी आपने हाइड्रोजन की एडिशन की, डिफरेंट हेलोजेंस की अल्काइल हेलाइड्स की हेलोजन एसिड्स की सब चीज़ ये डबल अक्रॉस डबल बॉन्ड दे कैन ऐड इट. ठीक है, लेकिन इनमें अनसेचुरेशन होने के बावजूद दे आर रिलेक्टेंट टू डू अंडरगो एडिशन रिएक्शन. उनके अंदर एडिशन रिएक्शन की फिजिबिलिटी वो इतनी ज़्यादा नहीं है. दे आर रिलेक्टेंट का मतलब क्या होता है कि वो ईजीली एडिशन रिएक्शन नहीं देंगे, बल्कि इसकी बजाय वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं. व्हाट इज मेंट बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? Those reaction in which one of the hydrogen is substituted by any other group of atoms is known as substitution reaction. Again repeat करूँगी. substitution reaction क्या होती है? जिसमें एक हाइड्रोजन बेंजीन का इन 6 में से कोई एक हाइड्रोजन किसी और ग्रुप ऑफ एटम्स से सब्स्टिट्यूट हो जाए
that type of reactions are known as substitution reactions. ठीक है, तो mostly they give you the substitution reaction instead of addition reaction, they undergo the substitution reaction. फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, दे हैव प्लेनर स्ट्रक्चर. उनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, उनका प्लेनर स्ट्रक्चर होता है. और फिफ्थ कैटेगरी क्या है, दे हैव हाई स्टेबिलिटी. उनके अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और लेकिन इसके बावजूद लो हीट ऑफ कंबस्टन होती है एंड लो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है. ठीक है, हाइड्रोजनेशन क्या होती है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन ऐड करते हुए जितनी हीट रिलीज होती है, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. एंड व्हाट इज कंबस्टन, कि व्हेन दे बर्न द ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न, जैसे कि आपने कंबस्टन, अल्केन की कंबस्टन पढ़ी होगी, अल्कीन्स की कंबस्टन पढ़ी होगी, अल्काइंस की कंबस्टन पढ़ी होगी. तो जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन आप बर्न करते हो तो उसमें से सम हीट रिलीज होती है, और वो हीट क्या होती है, दैट इज द हीट ऑफ कंबस्टन. उस हीट को हम हीट ऑफ कंबस्टन कहते हैं. ठीक है, तो इनकी so they have high stability and low heat of combustion and low heat of hydrogenation. So these are the characteristics of aromatic compounds. Mostly एक दफ़ा review कर लेते हैं दोबारा से कि they are cyclic compounds, they have high degree of unsaturation, but in spite of unsaturation they are reluctant to undergo addition reaction. इसकी बजाय they are most easily undergo the substitution reaction, and they have planar structure and they have high stability and low heat of combustion and low heat of hydrogenation. नेक्स्ट हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ चले जाते हैं कि इसमें ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं. बेंजीन के अंदर ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं. ये मैंने बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है. ये 6 कार्बन है जो प्लेनर पोजीशन में मौजूद होते हैं, और इनके साथ 6 हाइड्रोजन लगे हुए हैं. ठीक है, ये कार्बन आपने देख लें 1 2 3 4 5 6, और इनके साथ हमने 6 हाइड्रोजन प्लेस किए हुए हैं. और इन सो ऑल द कार्बन और ऑल कार्बन आर इक्विवेलेंट. सो ऑल 6 कार्बन्स आर इक्विवेलेंट. ये इन सब की हैसियत एक जैसी है. इनमें से कोई भी नंबर 1 हो सकता है. जब कार्बन एक जैसे हैं तो इनके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन भी इक्विवेलेंट हैं. दे आर ऑल सेम, इसलिए उनको हम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन कह सकते हैं. इनकी नंबरिंग आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, या यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, इस कार्बन से भी स्टार्ट कर सकते हो, इस कार्बन से भी स्टार्ट कर सकते हो. बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग क्या करते हैं, हम इसको टॉप से स्टार्ट करते हैं. ये वाला जो कार्बन है इसको हम कार्बन नंबर 1 कर देते हैं, और इसको हम 2, इस कार्बन को हम 3, इसको हम 4 कार्बन, इसको हम 5 कार्बन, एंड दिस इज द 6 कार्बन. इसके ऊपर नंबरिंग करना बहुत ज़रूरी है, और ये क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में बताऊंगी. ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. इसमें देख लें आप 1 और 2 के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, फिर एक सिंगल बॉन्ड है, फिर आपके पास डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, एंड फिर डबल है, एंड फिर सिंगल है. इसका मतलब ये है कि दे हैव ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल. ऑल्टरनेट का क्या मतलब होता है कि पहले डबल बॉन्ड आएगा, फिर सिंगल आएगा, फिर डबल आएगा, फिर सिंगल आएगा, तो एक छोड़कर एक आपके पास डबल बॉन्ड आ गया. सो इस तरह से टोटल जो डबल बॉन्ड्स की तादाद है वो 3 है, और इसमें सिंगल बॉन्ड्स की भी तादाद कितनी है, 3 है. ठीक है, तो टोटल 6 कार्बन है, उसमें से जो है 3 डबल बॉन्डेड है और 2 तरफ से वो सिंगली बॉन्डेड अटैच है. ठीक है, अगर आप इसके अंदर आपने देखा हुआ है कि कार्बन 4 आपने वैलेंसीज को सेटिस्फाई करता है, तो अगर कार्बन नंबर 1 को चेक करें तो इसके एक तरफ हाइड्रोजन है और 2 तरफ ये कार्बन है, तो 1 2 3 और एक डबल बॉन्ड मौजूद है, तो इसकी कितनी वैलेंसीज हो गई, 4 वैलेंसीज पूरी सेटिस्फाइड है. इसी तरह इस कार्बन को भी चेक कर लें, सब कार्बन आपकी 4 अपनी सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, सो हमने कहा है कि इनके अंदर ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होता है, और ये सारे के सारे कार्बन आपके इक्विवेलेंट होते हैं, और इनके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन भी इक्विवेलेंट होते हैं. सो इनमें से कोई एक हाइड्रोजन आप सब्स्टिट्यूट कर सकती हो. किसी एक हाइड्रोजन को आप किसी भी हाइड्रोजन के इसको किसी को भी आप
किसी और एटम या ग्रुप ऑफ एटम से सब्स्टिट्यूट कर दो तो उससे आपके पास बेंजीन के डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। शुरू में हमने कहा था कि क्यूल ने कहा था कि बेंजीन और उससे रिलेटेड जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। सो सब्स्टिट्यूटेड या डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो कि बेंजीन के ऊपर कोई एक हाइड्रोजन को आप किसी और एटम या ग्रुप ऑफ एटम से सब्स्टिट्यूट कर दो तो वो आपके सब्स्टिट्यूटेड या डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन्स बन जाते हैं। दे आर नोन एज सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन और दे आर नोन एज डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन्स। ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आपके दो तरह के हो सकते हैं, दे मे बी मोनोसाइक्लिक और दे मे बी पॉलीसाइक्लिक। मोनो क्या है, जैसे कि आपको नाम से जाहिर हो रहा है, मोनो मीन वन, साइक्लिक मीन साइकिल, सो दे कंटेन वन साइकिल, इनके अंदर क्या हो जाता है एक साइकिल। एंड पॉलीसाइक्लिक क्या होता है, दैट मे कंटेन मैनी साइकिल, पॉली मीन मैनी एंड साइक्लिक मीन सर्कल्स, सो दे कंटेन मैनी सर्कल्स। ठीक है। मोनोसाइक्लिक के अंदर मैंने चंद एक एग्जांपल्स लिखी हुई है, अभी आप इनसे फेमिलियर नहीं होगे, जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। दिस इज अ बेंजीन स्ट्रक्चर, इसके साथ क्या ग्रुप लगा हुआ है, CH3 ग्रुप। दिस इज ऑल्सो अ बेंजीन, इसके साथ क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, Cl। ये बेंजीन है और इसके साथ NO2 ग्रुप, जिसको आपने नाइट्रो बोला हुआ है, ये चीजें आप पढ़ चुकी हैं। NO2 ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन। अभी ये नॉमेनक्लेचर की तरफ नहीं आते। दूसरी कैटेगरी क्या है, पॉलीसाइक्लिक। पॉली मीन जैसे कि नाम से जाहिर है मेनी, और साइकिल्स, इसमें एक से ज्यादा साइकिल जब होंगे जिसमें बेंजीन एक मोर देन वन साइकिल्स होंगे उनको हम पॉलीसाइक्लिक कहेंगे। पॉलीसाइक्लिक आपके दो तरह के हो सकते हैं, दोज इन विच बेंजीन रिंग आर आइसोलेटेड है। ये देखें, इनके दरम्यान एक सिंगल बॉन्ड मौजूद है, यहाँ पर आपके पास सिंगल बॉन्ड ये मौजूद है। सो दो अलग अलग रिंग्स हैं और दे आर ज्वाइंड थ्रू अ लाइन। ठीक है, एक लाइन दूसरी लाइन को ज्वाइन कर रहा है। सो इसको हम क्या कह सकते हैं कि इसमें आइसोलेटेड बेंजीन रिंग है। इसमें ये जो पहला स्ट्रक्चर लिखा हुआ है जिसमें दो बेंजीन है जिसको हमने एक लाइन के साथ जोड़ा हुआ है, दिस इज नोन एज बायफिनल्स। ठीक है। और दूसरा स्ट्रक्चर जिसमें बीच में एक मीथेन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, ये मीथेन है। मीथेन क्या होता है, CH4, तो आपने एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह बेंजीन लगा दिया और दूसरा हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह जब हम बेंजीन लगा देंगे तो मीथेन का बाकी हाइड्रोजन कितने रह जाएंगे, 2। तो दिस इज द डायफिनाइल बेंजीन, इसको हम मीथेन, सॉरी, डायफिनाइल मीथेन, इसको हम क्या कहेंगे, डायफिनाइल और मीथेन, क्योंकि मीथेन के 2 हाइड्रोजन आपने किससे सब्स्टिट्यूट कर दिए, फिनाइल ग्रुप से। फिनाइल ग्रुप क्या है, यहाँ पे ये देखिए, दिस इज कॉल्ड C6H5 ग्रुप इज नोन एज द फिनाइल ग्रुप। ठीक है। सो इन दीज, ये हमने कहा था पॉलीसाइक्लिक दो तरह के होते हैं, इन विच 2 रिंग्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दे आर आइसोलेटेड। और दूसरा होगा कंडेंस एरोमेटिक। दूसरा क्या होगा, कंडेंस एरोमेटिक। कंडेंस नाम से जाहिर हो गया जुड़े हुए होंगे, और वो दो बेंजीन रिंग जब आपस में कौन सी पोजीशन से जुड़े होंगे, ऑर्थो पोजीशन से, दे पेयर्ड अप एट द ऑर्थो पोजीशन। फॉर एग्जांपल, ये एक आपके सामने एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर। इसमें देखिए एक बेंजीन बना हुआ है और उसके साथ दूसरा बेंजीन जुड़ा हुआ है। अब इस बेंजीन की ये पोजीशन ऑर्थो कहलाती है। अभी हम आगे नेक्स्ट इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो हम उसको डिस्कस करें। मैं इसको दोबारा यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो। ये एक बेंजीन रिंग है और इसकी ये पोजीशन, ये वाली पोजीशन जो है वो ऑर्थो पोजीशन कहलाती है। ठीक है, इससे दूसरा बेंजीन इसके साथ मैंने जोड़ दिया तो दिस इज कॉल्ड कंडेंस। इसको हम क्या कहेंगे, कंडेंस एरोमेटिक। 2 बेंजीन रिंग ऑर्थो पोजीशन से ज्वाइन। अब एक और अगर यहाँ पे जोड़ दोगे तो ये एक और आपका कंडेंस बेंजीन, कंडेंस एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी बन जाएगा। ठीक है, तो ये नेफ्थलीन था। जब 2 रिंग वाले को हम क्या बोलते हैं, नेफ्थलीन, और 3 रिंग वालों को हम क्या बोलते हैं, एंथ्रासीन। और तीसरा रिंग अगर यहाँ पर बजाय इसकी कि यहाँ पे पोजीशन इन 2 पोजीशंस के ऊपर जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये देखें यूं करके, ये बजाय इसके कि मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूं, ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे आ गया तो इसको हम क्या कहेंगे गर्ल्स, इसको हम फिनांथ्रीन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, फिनांथ्रीन। सो नेफ्थलीन 2 रिंग
फ्यूज टुगेदर एट द ऑर्थो पोजीशन, एंथ्रासीन में 3 रिंग आपस में फ्यूज है, और फिनांथ्रीन में 3 है, बट जो दूसरी ऑर्थो पोजीशन है वो थोड़ी सी चेंज हुई भी है। इस नेफ्थलीन की आप नॉमेनक्लेचर भी कर सकते हो, इसके ऊपर नंबरिंग कर सकते हो, सॉरी। यहाँ से आपने नंबर 1 शुरू करना, दिस इज द 1 2 3 4, और फिर इस कार्बन पे नहीं आना, इसको छोड़ देना और नेक्स्ट रिंग के ऊपर आ जाना है। दिस इज द 5, दिस इज द 6, और दिस इज 7, दिस इज 8। और अब जो जहाँ से ज्वाइन हुआ है 2 रिंग आपस में जुड़े हुए हैं, उनको आप नंबर कर लोगे। दिस इज पोजीशन नंबर 9 एंड दिस इज पोजीशन नंबर 10। ये दोनों ऑर्थो पोजीशन है जहाँ से 2 रिंग आपके कंडेंस हुए हैं। सो दीज आर नंबर्ड एज 9 एंड 10। दोबारा से नंबरिंग शुरू कर लेते हैं कि किसी एक कार्बन आप कॉर्नर टॉप, जैसे हमने इसको भी टॉप को हमने नंबर 1 कहा था बेंजीन के, इसी तरह हम इसके टॉप को हम यहाँ से, आप यही काम इधर से भी स्टार्ट कर सकती हैं। दिस इज 1 2 3 4, देन 5 6 7 8, और दिस इज 9 एंड अगेन दिस इज 10। सो ये नेफ्थलीन है, और दिस इज एंथ्रासीन 3 रिंग, और थर्ड रिंग अगर थोड़ा सा ऊपर है, ऑर्थो पोजीशन चेंज है, तो इसको हम फिनांथ्रीन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? फिनांथ्रीन कहेंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अगर CH3 ग्रुप लगा दिया, तो ये नेफ्थलीन ही है, बट कौन सी पोजीशन, इसकी 2 पोजीशन पे मीथाइल ग्रुप लगा हुआ है। कौन लगा हुआ है? मीथाइल सब्स्टिट्यूएंट। सो दिस इज 2 मीथाइल नेफ्थलीन। ठीक है, इस तरह से ये इसका नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया। Now we discuss the nomenclature of derivatives of benzene. अभी हमने बात की है derivatives of benzene क्या होते हैं। When one of the hydrogen of the benzene is substituted by atom or group of atom, then this become the derivative of benzene. इनको हम substituted benzene भी कह सकते हैं कि एक हाइड्रोजन, कोई सा भी एक हाइड्रोजन, because all the 6 हाइड्रोजन ऑफ द बेंजीन आर इक्वलेंट, सारे के सारे हाइड्रोजन सेम है, एक जैसे हैं। कोई एक सा भी हाइड्रोजन हम यहाँ से हटाकर इसकी जगह कोई और यहाँ पे ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दें, तो वो क्या कहलाएगा? डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। इसको हम सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन भी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? हम सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। सो दिस इज फर्स्ट कैटेगरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मोनो का मतलब क्या है कि जब एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दिस बिकम द मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। व्हेन वन हाइड्रोजन ऑफ द बेंजीन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय atom or group of atom, then this become the mono substituted benzene। ठीक है, डेफिनेशन भी होगी। सबसे पहले मैंने जो स्ट्रक्चर लिखा है इसमें देखें आप, बेंजीन के साथ एक आपका ग्रुप लगा हुआ है मीथाइल ग्रुप। ठीक है, तो दिस बिकम द मीथाइल बेंजीन। इसको हम क्या बोलेंगे? मीथाइल बेंजीन। ठीक है, इसका एक स्पेशल नेम है, इसको हम टॉलीन भी कहते हैं, टॉलीन। ठीक है, ये टॉलीन कहलाएगा या मीथाइल बेंजीन। सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो आपका है ईथाइल बेंजीन। ये CH2CH3 क्या है? ईथाइल है, और बेंजीन के साथ जब एक हाइड्रोजन को हटाकर आपने ईथाइल ग्रुप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया, तो दिस बिकम ईथाइल बेंजीन। इसको क्या कहेंगे? ईथाइल बेंजीन। थर्ड जो एग्जांपल है यहाँ पर हमारे पास, ये N प्रोपेन है। इस N प्रोपेन का एक हाइड्रोजन हटाकर यहाँ पर आपने C6H5 अटैच कर दिया, तो दिस बिकम N प्रोपाइल बेंजीन। इसको हम क्या कहेंगे? N प्रोपाइल बेंजीन। दिस इज द आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये आइसोप्रोपाइल है, जब आपका यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो दिस बिकम द आइसोप्रोपाइल। सो इट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसी तरह आप हाइड्रोजन की जगह आप हेलोजन ग्रुप भी लगा सकते हो, कोई हेलो ग्रुप लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप इसको रिप्लेस कर सकते हो क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से, फ्लोरीन से, तो ये बिकम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। फ्लोरीन होगा तो फ्लोरोबेंजीन कहलाएगा, आयोडीन होगा तो उसको हम आयोडोबेंजीन कहेंगे। इसी तरह अगर आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे NO2 ग्रुप से, NO2 ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रो ग्रुप। NO2 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रो ग्रुप। सो ये क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। इसको हम क्या लिखेंगे? नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अगर ग्रुप
होगा NO2 N, जब ऑक्सीजन 2 होंगे तो इसको हम नाइट्रो बोलेंगे, लेकिन जब ऑक्सीजन 1 होगा तो दिस बिकम नाइट्रोसो, NITROSO, नाइट्रोसो कहेंगे इसको, ठीक है। तो दिस बिकम नाइट्रोसो बेंजीन। अगर बेंजीन के साथ CN ग्रुप लगेगा तो दिस इज नोन एज सायनोबेंजीन। इसको हम क्या बोलेंगे? सायनोबेंजीन, या इसको फिनाइल नाइट्राइल भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ साइनोबेंजीन, ठीक है। कुछ ऐसे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं जिनके स्पेशल नेम होते हैं, जिनके खास किस्म के नाम होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बेंजीन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो इसको हम फिनोल ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिनोल। इसको कॉमनली क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सी बेंजीन। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसको ये भी नाम दे सकते हैं, और इसका जो स्पेशल नेम है वो क्या है? फिनोल। और अगर बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो इसका स्पेशल नेम एनिलीन होगा, एनिलीन। और इसका ऊपर की तरह अगर हम ऊपर वाला नॉमेनक्लेचर यूज करें तो दिस इज कॉल्ड अमीनो बेंजीन। इसको हम क्या बोलते हैं? अमीनो बेंजीन, ठीक है। अगर बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड हो CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो दिस इज कॉल्ड एसीटोफिनोल। इसको हम क्या कहेंगे? एसीटोफिनोल। आप देख लें कि ये कीटोन, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन। C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज नोन एज कीटो ग्रुप। और एक साइड पे क्या लगा हुआ है? CH3 ग्रुप, और दूसरी साइड पे क्या लगा हुआ है? फिनाइल ग्रुप, C6H5। जब एक हाइड्रोजन आप हटा देंगी, ये क्या बन जाएगा? C6H5, ठीक है। तो इस C6H5 को आप फिनाइल बोलती हैं। जब ये एज अ सब्स्टिट्यूट, जैसे कि आपने मीथेन पढ़ा है, CH4 मीथेन होता है। जब एक हाइड्रोजन मीथेन का हटा दें तो आपके पास CH3 ग्रुप लग जाता है, तो दिस बिकम मीथाइल। इसी तरह C6H5 इज नोन एज बेंजीन, और जब एक हाइड्रोजन हटा देंगी तो दिस बिकम C6H5, और इसको हम एज अ सब्स्टिट्यूट नोमेनक्लेचर जब करेंगे तो इसको हम फिनाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिनाइल। सो दिस इज मीथाइल फिनाइल कीटोन। इसका कॉमन नेम क्या हुआ? मीथाइल फिनाइल कीटोन। और वैसे इसका स्पेशल नेम क्या है? एसीटोफिनोल। ऑल ऑफ यू क्लियर? आई थिंक दिस इज द बेंजोइक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड, ठीक है, क्योंकि बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। C डबल बॉन्ड OH इज नोन एज कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। सो इसका स्पेशल नेम क्या है? बेंजोइक एसिड। अब बेंजीन के साथ OCH3 ग्रुप लगा है तो दिस इज कॉल्ड एनिसोल। इसको हम क्या कहते हैं? एनिसोल। ये अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ईथर कैटेगरी है, ROR, या R नहीं है बल्कि एरोमेटिक है, तो ROAR, ठीक है। एरोमेटिक जब ईथर्स होंगे तो इसमें इसका स्पेशल नेम होगा एनिसोल, और इसको हम मीथाइल फिनाइल ईथर भी कह सकते हैं। जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अल्कोहल्स का, इसके बाद आप एल्डिहाइड्स का पढ़ेंगे, ईथर्स का पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप उनका अलग अलग नॉमेनक्लेचर करेंगे। जैसे कि आपने अल्केन का नॉमेनक्लेचर पढ़ा है, अल्कीन का पढ़ा है, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें अगर अभी शक है तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सो ये ईथर कैटेगरी है, इसका स्पेशल नेम एनिसोल है, और इसका जब हम वैसे नेम करेंगे, स्पेशल नेम तो एनिसोल है, वैसे नेम क्या है? मीथाइल फिनाइल ईथर। इसी तरह इसको हम एसीटोफिनोन कह रहे हैं, तो दिस इज मीथाइल फिनाइल कीटोन। इसके अलावा अगर बेंजीन के साथ CH डबल बॉन्ड CH2 इथीन है, ये देखिए ना, इथीन है, 2 हाइड्रोजन होते तो इथीन होता, लेकिन एक हाइड्रोजन को हटाकर हमने उसकी जगह क्या लगा दिया? C6H5। तो इसका स्पेशल नेम क्या है? स्टायरीन। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टायरीन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर बेंजीन के साथ CH2 ग्रुप के साथ क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है तो इसको हम बेंजाइल क्लोराइड कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम? बेंजाइल क्लोराइड। ऑल ऑफ यू क्लियर? अगर 2 क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड हैं तो इसको हम बेंजल क्लोराइड कहेंगे। अगर तीनों सब्स्टिट्यूटेड हैं तो इसको हम बेंजो ट्राइक्लोराइड कहेंगे। बेंजो ट्राइक्लोराइड। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर? इसी तरह यानी अगर आप देखें तो ये ग्रुप हमारा
बेंजाइल कहलाता है। क्या कहलाता है ये? बेंजाइल, और Cl लगा तो बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये इसी तरह यहाँ पे यही ग्रुप है, CH2 ग्रुप है, तो दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। इसको हम क्या बोलेंगे? बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट, अगर हमारे पास SO3H ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के साथ, तो इसको हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं। सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहेंगे। और अगर इसका सॉल्ट है हमारे पास SO3Na, ये सॉल्ट बन गया ना, तो इसको हम कहेंगे सोडियम, सोडियम पूरा लिख लेते हैं, सोडियम बेंजीन। अब सॉल्ट बन गया, सल्फोनिक एसिड नहीं कहेंगे, सल्फोनेट कहेंगे, सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सो दिस इज अगेन, ये बेंजाइल अल्कोहल है। ये मैंने आपको बताया है कि इसको CH2 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? CH2 ग्रुप को, बेंजीन के साथ जब CH2 ग्रुप लगा होता है तो इसको हम बेंजाइल बोलते हैं, और इसके साथ OH ग्रुप है तो दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। इसी तरह अगर बेंजीन के साथ SO3H ग्रुप लगा हुआ है तो दिस इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसी तरह अगर बेंजीन के साथ इसका सॉल्ट है, सोडियम H को रिप्लेस कर दिया सोडियम से, तो ये सॉल्ट बन गया, तो दिस इज कॉल्ड सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सो एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर ले, स्पेशल मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को कुछ जब अल्काइल ग्रुप लगे हुए होंगे तो उसको हम, अगर मीथाइल है तो टॉलिन बोलेंगे, अगर ईथाइल है तो ईथाइल बेंजीन बोलेंगे। प्रोपाइल दो कंडीशन में होता है, एन भी होता है और आइसो भी होता है, ठीक है। तो एन होगा तो उसको एन प्रोपाइल बेंजीन कहेंगे, और अगर आइसो होगा तो इसको हम आइसो प्रोपाइल बेंजीन कहेंगे। देन अगर हेलो कोई ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हेलो के लिहाज से नॉमेनक्लेचर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज क्लोरोबेंजीन, दिस इज ब्रोमोबेंजीन। अगर आयोडीन लगा हुआ है तो आयोडोबेंजीन, अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरोबेंजीन। अगर बेंजीन के साथ NO2 ग्रुप लगा हुआ है तो दिस इज कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन। अगर NO ग्रुप लगा हुआ है तो नाइट्रोसोबेंजीन। अगर बेंजीन के साथ CN ग्रुप लगा हुआ है, C ट्रिपल बॉन्ड N, जिसको साइनोबेंजीन कहेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे मोनो सब्स्टिट्यूटेड हैं जिनका स्पेशल नेम है। फॉर एग्जांपल अगर OH ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी बेंजीन है, तो इसको हम फिनोल बोलेंगे। अगर अमाइनो बेंजीन है तो इसको हम एनिलीन बोलेंगे। अगर आपका मीथाइल फिनाइल कीटोन है तो उसको हम एसीटोफिनोल बोलेंगे, इसको हम बेंजोइक एसिड ही कहते हैं। अगर मीथाइल फिनाइल ईथर है तो इसको हम एनिसोल बोलेंगे। ऑल ऑफ यू क्लियर? मीथाइल फिनाइल ईथर है तो उसको हम एनिसोल बोलेंगे। अगर इथिलीन बेंजीन है, इथाइलिन बेंजीन है, तो उसको हम स्टायरीन बोलेंगे। अगर बेंजीन के साथ CH2Cl ग्रुप लगा हुआ है तो इसको हम बेंजिल क्लोराइड बोलेंगे। अगर 2 क्लोरो ग्रुप लगे हैं तो बेंजल, और अगर 3 है तो बेंजो ट्राइक्लोराइड, ठीक है। अगर बेंजीन के CH2 ग्रुप के साथ OH ग्रुप लगा है तो बेंजाइल अल्कोहल पढ़ेंगे, ठीक है। अगर बेंजीन के साथ SO3H ग्रुप लगा हुआ है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहेंगे, और अगर इसका सॉल्ट है तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। Now the nomenclature of di-substituted benzene. As the name indicate, di-substituted क्या होगा कि जब बेंजीन के एक से ज़्यादा यानी 2 हाइड्रोजन they are substituted by atom or group of atom, then this is called di-substituted benzene. इसको हम क्या बोलेंगे? di-substituted benzene. इनका nomenclature करने से पहले हम चंद बातों का जहन नशीन करेंगे। सबसे पहले कि अगर 2 substituent, अगर एक हमने बेंजीन को नंबरिंग किया हुआ है, तो हमने इस कार्बन को नंबर 1 किया, इसको 2 किया था, इसको 3, एंड दिस इज 4, 5 and 6. If the one substituent is present at 1 position and other substituent is present at 2 position, तो ये 1-2 पोजीशन कहलाएगी। ये क्या पोजीशन कहलाएगी? आपकी 1-2 पोजीशन, और इस पोजीशन को आप ऑर्थो पोजीशन भी कह सकती हैं। 1-2 पोजीशन इज आल्सो नोन एज ऑर्थो पोजीशन। अब यहाँ पर थोड़ी सी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये 1-2 पोजीशन अगर आपको मैं इस तरह से स्ट्रक्चर लिखूं और एक सब्स्टिट्यूट यहाँ अटैच हो और दूसरा यहाँ अटैच हो, तो आप इसको क्या कहेंगी? दिस इज ऑल्सो 1-2 पोजीशन, ठीक है।
जो भी है रेफरेंस पॉइंट, अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की हुई है, यहाँ से स्टार्ट किए रहेंगे 1 2 देन 3 देन 4 देन 5 और ये आपका 6 कार्बन, ठीक है। तो ये भी 1 2 पोजीशन है। अगर एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ है और दूसरा यहाँ है तो दिस इज ऑल्सो 1 2 पोजीशन, और 1 2 पोजीशन इज ऑल्सो नोन एज ऑर्थो पोजीशन। सेकेंड आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर आपका जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है वो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट इस पोजीशन पर है और एक खाली पोजीशन है, और उसके बाद आपकी थर्ड पोजीशन पर दूसरा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में अगर आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट 1 पोजीशन पे अटैच है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 3 पोजीशन पर अटैच है, एक उसमें पोजीशन खाली छोड़ी हुई है, यहाँ पे हाइड्रोजन ही अटैच होगा, यहाँ पे कोई और ग्रुप नहीं अटैच, तो बल्कि जब ये पोजीशन होगी तो दिस इज कॉल्ड मेटा पोजीशन। 1 3 पोजीशन इज ऑल्सो नोन एज मेटा पोजीशन। अब यहाँ पे भी अगेन आप वही बात करेंगे कि अगर आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट इस तरह से अटैच है और एक इस तरह से अटैच है, तो अगेन आप नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 एंड दिस इज 3, दिस इज अगेन 1 3 पोजीशन, सो सेम एज दिस, ठीक है। दिस इज ऑल्सो मेटा पोजीशन, इस पोजीशन को भी आप क्या कह सकते हो, मेटा पोजीशन, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह की है सिचुएशन कि आपके पास सब्स्टिट्यूएंट एक 1 पे अटैच है और 2 और 3 पोजीशन आपकी एम्प्टी है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 4th पोजीशन पे अटैच है, तो दिस पोजीशन इज नोन एज 1 4 पोजीशन, या इस पोजीशन को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं आप, पैरा पोजीशन, ठीक है। इसको हम पैरा पोजीशन या पैरा सब्स्टिट्यूटेड डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन भी कह सकते हैं। अगेन इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि अगर दो सब्स्टिट्यूएंट 1 2 पोजीशन पे हैं तो उसको हम ऑर्थो पोजीशन कहेंगे। इफ द टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर एट 1 3 पोजीशन देन दिस इज कॉल्ड मेटा पोजीशन, एंड इफ द टू सब्स्टिट्यूएंट आर at 1 4th position then this position is known as para position। अब आपके पास फिर अब यहाँ पे कौन से ग्रुप लगे हुए हैं ये डिसाइड करना अभी हमने है। आपने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, आप इस कार्बन को नंबर 1 कहोगे या इसको कहोगे, ये आपने डिसाइड करना है कि आपके यहाँ पर दो जो ग्रुप लगे हुए हैं उनमें से कौन ज़्यादा पोटेंट है। पोटेंट का मतलब क्या है कि उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर किस तरह से, यानी यू हैव टू स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दैट कार्बन टू विच हाई पोटेंट ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है। अगर यहाँ पर उससे पहले हम प्रायोरिटी ऑर्डर देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहले प्रायोरिटी मीन्स सबसे पहले आपने किसको पोजीशन नंबर 1 काउंट करना है, वो है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक, दैट इज C डबल बॉन्ड OH। सेकेंड आपका साइनो ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में है। थर्ड आपका C डबल बॉन्ड H एल्डिहाइड। फोर्थ आपके पास कीटोन ग्रुप C डबल बॉन्ड OH। देन आपने किसको प्रायोरिटी देनी है, हाइड्रोक्सल को, फिर आपने अमीनो ग्रुप्स को देने हैं, फिर आपने ईथर्स को, और सबसे आखिर में आपने अल्काइल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में सपोज आपके पास अगर 1 2 पोजीशन पे एक ग्रुप ये कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है और दूसरा आपका हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, तो आपने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, जिस कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होगा, ठीक है। हाइड्रोक्सी वाले को नंबर 1 नहीं देना बल्कि आपने कार्बोक्सिलिक को देना, ठीक है। क्लियर हो गया। सो आपने नंबरिंग आपने वहां से स्टार्ट करनी है जहां से आपका हाई पोटेंट ग्रुप प्रेजेंट होगा, और प्रायोरिटी ऑर्डर आपके सामने ये मैंने लिखा हुआ है, इसको एक दफा आप खुद रिवाइज कीजिएगा। उसके बाद है अगर दो सब्स्टिट्यूएंट, ये तो है कि दो सब्स्टिट्यूएंट आपके डिफरेंट हैं, ये डिफरेंट है और प्रायोरिटी ऑर्डर भी डिफरेंट है, देन यू हैव टू टेक द नंबरिंग फ्रॉम दैट कार्बन टू विच हाई प्रायोरिटी ग्रुप इज अटैच। लेकिन अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट भी हैं और वो इन प्रायोरिटी ऑर्डर में मौजूद नहीं है, फिर हमने क्या करना है, हमने उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फॉर एग्जांपल आपके एक कार्बन के साथ बेंजीन के एक कार्बन के साथ क्लोरीन लगा हुआ है और एक के साथ ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। If we have one chlorine and other bromine, then they are named as in alphabetical order. The last named substituent will be at the position number 1. जो alphabetical order में जो last name substituent होगा उसको हम पोजीशन नंबर 1 कहेंगे, ठीक है। इफ वन सब्स्टिट्यूएंट हैज अ स्पेशल नेम, थर्ड जो रूल आ रहा है
वो क्या है, अगर एक सब्स्टिट्यूएंट में स्पेशल नेम है उस स्पेशल नेम को हम एज पेरेंट नेम के तौर पर यूज करेंगे, ठीक है। सो ओवरऑल रूल के दो हमने कहा है, तीन डाई सब्स्टिट्यूट के लिए 3 पोजीशंस होती हैं, ऑर्थो 1-2 पोजीशन, मेटा 1-3 पोजीशन एंड पैरा 1-4 पोजीशन। और नंबरिंग आपने वहां से स्टार्ट करनी है जहां पे आपके प्रायोरिटी ऑर्डर में ज़्यादा पोर्टेंट ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और अगर दो सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट भी है और प्रायोरिटी ऑर्डर में मौजूद नहीं है तो उनको हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है। फॉर एग्जांपल ब्रोमो पहले आएगा और क्लोरो बाद में आएगा, और जो बाद वाला वर्ड है उसको हम पोजीशन नंबर यानी क्लोरीन को हम पोजीशन 1 कहेंगे। और अगर आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट है जिसका एक स्पेशल नेम है, फॉर एग्जांपल एक ग्रुप OH लगा हुआ है, OH का स्पेशल नेम हमने पढ़ा है फिनोल होता है, ठीक है। तो इस स्पेशल नेम को हम एज अ पेरेंट नेम इस्तेमाल करेंगे जो बाद में होगा, और जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको हम पहले नॉमेनक्लेचर कर लेंगे, ठीक है। हम चंद एक एग्जांपल्स देख लेते हैं और उसके साथ साथ हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। फॉर एग्जांपल डाई सब्स्टिट्यूटेड के लिए हम थोड़ी सी एग्जांपल्स लिखते हैं और फिर उसमें आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, इन रूल्स को भी आपको पता लग जाएगा कि ये रूल्स किस तरह से यूज होंगे। सबसे पहले है कि अगर आपके पास 2 बेंजीन है, फॉर एग्जांपल अब हम इन रूल्स की एप्लीकेबिलिटी देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये बेंजीन है और डाई सब्स्टिट्यूटेड है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पर मैंने जो अटैच किए हैं दोनों ही मीथाइल ग्रुप है। तो दिस इज कॉल्ड 1,2-डाईमीथाइल बेंजीन। इसका नाम क्या है, 1,2-डाईमीथाइल, मैं लिखूंगी तो टाइम लग जाएगा, 1,2-डाईमीथाइल बेंजीन, ठीक है। और ये 1-2 पोजीशन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका एक स्पेशल नेम भी है, इसको हम ऑर्थोजाइलिन भी कह सकते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज ऑर्थोजाइलिन। अगर यही मीथाइल ग्रुप डिफरेंट पोजीशन पे लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल एक आपका यहाँ अटैच है एंड अदर वन इज हेयर, तो दिस इज 1-2-3 पोजीशन, दिस इज कॉल्ड 1,3-डाईमीथाइल बेंजीन, और इसको हम मेटाजाइलिन भी कह सकते हैं। और अगर यही सब्स्टिट्यूएंट आपकी थोड़ी सी अलग पोजीशन पर अटैच है, फॉर एग्जांपल 1 पोजीशन पे 2, 3 एंड देन सी, अब यहाँ पे चूंकि दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है इसलिए मैं नंबरिंग यहाँ से कर लूँ यहाँ से कर लूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज 1,4-डाईमीथाइल बेंजीन, या इसको हम पैराजाइलिन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपके पास 2 डिफरेंट ग्रुप हैं जो प्रायोरिटी ऑर्डर के लिहाज से डिफरेंट है, जैसे मैंने अभी आपको पीछे रूल बताया था कि अगर उनका प्रायोरिटी डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे अटैच है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरा यहाँ पे OH ग्रुप अटैच है, तो इसको हम अब पहले आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, बिकॉज इसके साथ COOH ग्रुप अटैच है, दैट इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये कौन सा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। सो दिस कार्बन इज टेकन एज a number 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। सो ये कौन सी पोजीशन बन रही है, 1-4, या इसको हम पैरा पोजीशन भी कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपने एक यहाँ पर आप दोनों के स्पेशल नेम है आपके पास, ठीक है। इसको जब बेंजीन के साथ ये अटैच होता है इसको बेंजोइक एसिड कहते हैं, और जब ये अटैच होता है तो इसको आप फिनोल बोलते हैं, लेकिन आपने प्रायोरिटी किसको देनी है, बेंजोइक एसिड को, तो इसको आपने एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेना है। सो इट इज कॉल्ड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या हो गया, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। पैरा की बजाय आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे 4 भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज 4-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और अगर इसी तरह और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल एक और मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख लेती हूँ, आपको प्रायोरिटी ऑर्डर का अंदाजा हो, बाकी आप बुक्स में देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल दिस इज NH2 ग्रुप लगा हुआ है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो प्रायोरिटी अगेन इसकी ज्यादा है, तो ये 1-2 पोजीशन है, तो इसको आप एज ए सब्स्टिट्यूट ले लें। दिस इज 2-अमाइनो बेंजोइक एसिड, क्या है ये, 2-अमाइनो बेंजोइक एसिड या ऑर्थो अमाइनो बेंजोइक एसिड, अमाइनो बेंजोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह हम और बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक अब हम चूंकि अब ऐसा लेते हैं कोई दैट इज AOH एंड दिस इज CH3 ग्रुप, ठीक है। अब आपको अंदाजा, ये प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे लास्ट पे आता है और ये सबसे पहले है, तो दिस इज फर्स्ट टेकन एज नंबर 1 कार्बन, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, 3 मिथाइल फिनोल, इसका नाम क्या होगा,
3 मिथाइल फिनोल। ठीक है, तो हमने प्रायोरिटी ऑर्डर में जो हाईएस्ट है उसका पेरेंट नेम ले लिया और दूसरे को हमने क्या किया एज अ सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे भी हमने यही किया और यहाँ पे भी हमने यही किया हुआ है। इसी तरह हमारे पास अगर और एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल COOH है और क्लोरीन है। अब क्लोरीन आपका लीस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे आखिर में आता है और ये फर्स्ट है, तो दिस इज 1, ये 3 पोजीशन है, 1 2 एंड 3 पोजीशन। दिस इज 3 क्लोरो बेंजोइक एसिड या मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। ठीक है, और एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, OH एंड OH, डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन है यहाँ पे। ये डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन और कौन सी पोजीशन पे है, 1 2। इसको हम ऑर्थो डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं और इसका स्पेशल नेम है, इसको हम कैटिकोल्स भी कहते हैं। ठीक है, और अगर यही हाइड्रोक्सी ग्रुप 1 3 पोजीशन पे मौजूद होंगे हमारे पास 1 3 पोजीशन पे, दैट इज द मेटा पोजीशन, तो इसको रिसोर्सिनोल बोलते हैं, रिसोर्सिनोल। ठीक है, और अगर यही हाइड्रोक्सी ग्रुप आपके पास 1 4 पोजीशन पर है, OH एंड OH, दिस इज पैरा पोजीशन या 1 4 पोजीशन, तो इसको हाइड्रोक्विनोन्स बोलते हैं, हाइड्रोक्विनोन्स। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप बुक में एक्सरसाइज में देखिएगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर अभी जो थर्ड रूल हमने पढ़ा था कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर आपके पास है, फॉर एग्जांपल क्लोरो ग्रुप है और ये ब्रोमो है, तो अल्फाबेटिकली आपके पास ब्रोमीन पहले आएगा, क्लोरीन बाद में आएगा, तो आपने नंबर 1 इसको देना है और 2 3, क्योंकि हमने क्या कहा था कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो बाद में आएगा उसको हम पोजीशन नंबर 1 देंगे। सो दिस इज 3 ब्रोमो 1 क्लोरो बेंजीन, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो बेंजीन। ठीक है, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है बेंजीन के साथ तो उनकी भी नोमेनक्लेचर हम इसी तरीके से करेंगे, वहां पे भी हम प्रायोरिटी ऑर्डर का ख्याल रखेंगे और ज्यादा नंबरिंग सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के ऊपर। पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन के ऊपर जब लगे होंगे तो ऐसे बेंजीन के मॉलिक्यूल को, कंपाउंड्स को हम पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहते हैं। फॉर एग्जांपल बेंजीन है, इसके साथ आपके पास 2 नाइट्रो ग्रुप और 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में OH ग्रुप इज मोर प्योर एज कम्पेयर टू द नाइट्रो ग्रुप, तो इसको हम इट इज टेकन एज नंबर 1, देन 2, ये आपका 2 पोजीशन है, ये 3 पोजीशन है, दिस इज 4। सो आपके पास अब यहाँ पे ऑर्थो और मेटा और पैरा का कॉन्सेप्ट नहीं यूज होगा, बिकॉज ऑर्थो और मेटा और पैरा हम डाई सब्स्टिट्यूटेड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर एक से ज्यादा होंगे तो देन हम नंबरिंग यूज करेंगे। अब हमारे पास 2 नाइट्रो सेम है और कौन कौन सी पोजीशन पे अटैच है, 2 एंड 4 पोजीशन पे। ठीक है, इधर से हम नंबरिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये खाली कार्बन है, तो हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे और मूविंग टुवर्ड्स सर्कल उस तरफ से जाएंगे जहां से लोअर नंबर हमारे सब्स्टिट्यूएंट को आएंगे। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट को 1 पोजीशन आ जाएगी, दूसरे को 2 और तीसरे को 4। अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास एक 4 आएगा और एक 6 होगा, दैट वाज रॉन्ग। तो हमें यहाँ क्लॉकवाइज नंबरिंग, यहाँ इस केस में हमें क्लॉकवाइज नंबरिंग करनी है। सो हमारे पास 2 नाइट्रो ग्रुप हैं जो कौन कौन सी पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे, देन डैश डाई नाइट्रो फिनोल, इसका पेरेंट नेम क्या हुआ, फिनोल। ठीक है, तो दिस इज 2 4 डाई नाइट्रो फिनोल। अगर आपके पास यहीं पे एक और नाइट्रो ग्रुप मैं यहाँ बढ़ा दूं तो दिस बिकम्स, अब 4 के बाद ये 5 पोजीशंस इसकी स्पेस फ्री है और 6 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 4 6
यहाँ पे कॉमा करके, अगर नंबरिंग सब्स्टिट्यूएंट रिपीट है, जैसे कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के अंदर आपने पढ़ा था कि अगर एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट है और वो एक से ज़्यादा है तो उनको हम डाई और ट्राई के साथ सफिक्स यूज़ करके हम इसको नंबरिंग उनके नंबर्स को बता सकते हैं। अगर 3 है तो ट्राई इस्तेमाल करेंगे और उनके साथ उनकी पोजीशंस को मेंशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक नाइट्रो ग्रुप 2 पोजीशन पर है, दूसरा 4 और तीसरा 6, तो हमारा इसका नेम क्या हो जाएगा, 2,4,6 डैश ट्राई नाइट्रोफिनोल। इसी तरह अगर आपके पास NO2 है और यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे ब्रोमीन है, ठीक है। अब यहाँ पे मौजूद कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ऐसा नहीं है जो प्रायोरिटी ऑर्डर में मौजूद है, तो इन सबको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबर करेंगे। ये मैं केस स्पेशल आपके लिए यहाँ पे लिख रही हूँ जिसमें बहुत सारे रूल इस्तेमाल होंगे। तो इसमें कोई भी ऐसा सब्स्टिट्यूएंट नहीं है जो प्रायोरिटी ऑर्डर में मौजूद है, ऑर्डर में मौजूद था। यहाँ पे सब डिफरेंट है और कोई भी ऐसा नहीं है जो सेम है। तो यहाँ पर हमें इन सब सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करना है, नंबर करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिस इज ब्रोमो, बी पहले आएगा, क्लोरो और एन नाइट्रो, ठीक है। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से, क्योंकि ये बाद में आएगा इसलिए इसको टेकन एज अ नंबर 1, देन दिस इज 2, देन दिस इज 3 और दिस इज 4। तो 3 पोजीशन आपकी वेकेंट स्पेस है, वेकेंट साइट है, सिर्फ 1 पे सब्स्टिट्यूएंट है, 2 पे है और 4 पे है। इसका नाम क्या होगा जनाब, दिस इज 4 डैश लिखेंगे ब्रोमो, देन डैश, फिर हमारे पास 2 है डैश क्लोरो, फिर डैश, और 1 को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, अगर आप कर भी देते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। दिस इज 1 नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। दिस इज 4 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 1 नाइट्रो बेंजीन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और जो लास्ट में नाम है उसका नंबर 1 पोजीशन होगी। ऑल ऑफ यू क्लियर? आई होप कि ये आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास सेम सब्स्टिट्यूएंट है, फॉर एग्जांपल ये है क्लोरो ग्रुप लगे हुए, तो यहाँ पे आप कहीं से भी नंबरिंग कर लें 1, 2, लेकिन ख्याल रखें कि नंबरिंग का जो सम है वो लोएस्ट आना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो हम यहाँ से शुरू कर लें, यहाँ से सेम आएगा, ठीक है। ये क्या होगा, 1, 3, 5 डैश